Hello students, welcome back to my lecture of class 12 physics. We are studying the chapter electrostatic potential and capacitance. The first part was about the electrostatic potential that we have completed. Now here we have the second part of the chapter, that is the capacitance. So here we have the first topic, that is the capacitor and the capacitance. So first of all, look at what the capacitor and capacitance is. So first of all, capacitor, it is an arrangement for storing large amount of electric charge and hence electrical energy in a small space. मतलब ये जो capacitor है, it's an arrangement in which we can store a very large amount of charge. और जब हम वहां पर चार्ज को स्टोर करेंगे तो चार्ज के साथ साथ वहां पर हम एनर्जी को भी उस स्मॉल स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं. एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर. Okay, it consists of two conductors separated by an insulating medium. हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर ये हो गया और दूसरा कंडक्टर ये हो गया. एंड द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. मतलब यहाँ पर जो एक कंडक्टर है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और यहाँ पर जो दूसरा कंडक्टर है उसको नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है. ओके, एंड हियर the medium between the two conductors, that is the insulating medium, or you can say, you can also keep the dielectric medium between the two, and this system will be called as the capacitor. Okay, now this capacitor is an arrangement and the property of capacitor that is called as the capacitance. Okay, now what that capacitance is? Capacitance, it is the measure of conductor's ability to store charge. Capacitor तो charge को store कर लेगा, but उसकी the ability to store the charge, that is called as its capacitance. Okay, now here the charge stored is directly proportional to the potential difference. मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर ये चार्ज कितना स्टोर करेगा. whatever the charge is stored, that depends upon the potential between the two plates. इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा यहाँ पर उतना ही ज्यादा ये स्टोर कर सकता है. अगर पोटेंशियल कम होगा दोनों प्लेट्स के बीच में तब वहां पर चार्ज भी कम स्टोर कर पाएगा. मीन्स दिस Q is directly proportional to V. Now here we have to remove this proportionality sign, so we have to use the constant C. So Q is equals to CV, where C is the proportionality constant which is called as the capacitance. मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है Q is equals to CV. Okay, now here if V is equals to 1 volt, हम यहाँ से कैपेसिटेंस को इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं. थ्योरेटिकली हमने कैसे डिफाइन किया? द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज. नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला Q is equals to CV, if we keep this V is equals to 1 volt, मतलब हमारे पास दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है कितना है? 1 वोल्ट. सो इफ V is equals to 1 volt, Q is equals to C, मतलब यहाँ पर Q किसके इक्वल हो जाएगा? C के इक्वल. इट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय यूनिटी. मतलब यहाँ पर अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट, उस केस में Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C. मतलब यहाँ पर उस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू द चार्ज which raise the potential of the plates by 1. Okay, so that is called as the capacitance of the system. Now here the unit, what is the unit of this capacitance? The unit of capacitance is farad. This is F-A-R-A-D represented by capital F. So how we can define this farad? अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले से ही हम यहाँ पर farad को डिफाइन कर सकते हैं. How we can define? Capacitance is said to be 1 farad, मतलब यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है? 1 farad. If 1 coulomb of charge is required, मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है? 1. मतलब हमें यहाँ पर if Q is equals to CV, अगर हमें यहाँ पर C equals to कितना हो गया? Q by V, because we want the value of C. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? C is equals to 1 कब होगा? जब हमारे पास Q is equals to 1 coulomb है and V is equals to कितना है? 1 coulomb. So capacitance is said to be 1 farad. 1 farad कब होगा? If 1 coulomb of charge is required to raise the potential of capacitor by 1 volt. इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पर 1 coulomb चार्ज उस सिस्टम का जो पोटेंशियल है कितना कर दे? 1 volt, then we can say that the capacitance of that system is called as the 1 farad capacitance. Okay, so this is how we can define the unit of capacitance. Now here, after deriving the formula for the capacitance, we can define the capacitance in terms of formula also. So we have another definition of capacitance. We have Q is equals to CV. Now from here I can write C is equals to Q by V. तो मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले के टर्म में भी हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं. How we can define? It is defined as the ratio of charge on the capacitor to the potential difference across the conductors. Or we can say it is also defined as the ratio of charge on the capacitor to the potential of the capacitor. This is from the formula.
Okay, now here we have one more point, that on what factors the capacitance of a capacitor depends. The capacitance of capacitor depends upon two factors. The first one is shape and size of the conductor. जैसा शेप होगा उस कंडक्टर का और जो साइज होगा उसके हिसाब से वहां पर उस कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस होगा. एंड द सेकंड वन इज द नेचर ऑफ द मीडियम, मींस यू कैन से दैट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. अब यहाँ पर ये दो जो डिपेंडेंसी है, दिस वी विल सी व्हेन वी विल डिराइव द फार्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. Okay, in that formula you will see that how this capacitance depends upon the shape and size and on the nature of the medium. So after looking at the basics of capacitor and capacitance, let us look that how a capacitor works. Okay, so here let us assume कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है. Okay, now on this conductor we are giving some charge. Let us assume कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज Q, and this charge is plus Q. मतलब यहाँ पर इस पूरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा that complete charge will be positive. अब यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर हमें इतना चार्ज देना है कि it reaches to its maximum potential. इसका मतलब क्या है कि वहां पर इतना मैक्सिमम चार्ज दे सके कि उसके बाद ये और चार्ज वहां पर ना ले सके. इट मीन्स दैट इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब उसके बाद हम और चार्ज उसके ऊपर नहीं दे सकते. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं क्या करता हूं कि एक और यहाँ पर दूसरा कंडक्टर इसके पास में लेके आता हूं विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r. इट इज अनचार्ज कंडक्टर. नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन क्या होगा, इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस यहां पर आ जाएंगे and on the other side there will be positive charges. Here we have not kept these two conductors in contact. That's why the method by which it gets charged, that is the charging by induction. Okay, now अब यहाँ पर जो चार्ज आ गया इसके ऊपर, it is minus q and here it is plus q. अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, because of the negative charge it will try to reduce the potential of this कंडक्टर फर्स्ट. इस पहले वाले कंडक्टर का ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल कम कर देगा. कितने अमाउंट से, इफ इनिशियली द पोटेंशियल वाज V, then because of this negative charge the potential will be V minus kq by r, where k is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, because for the charge we have the formula V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, here this charge is q, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल कम होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, दैट इज V माइनस की क्यू बाय आर. नाउ सिमिलरली यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस फर्स्ट कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करेगा. एंड हाउ मच टू इंक्रीज, दैट इज V प्लस के क्यू बाय आर. यहाँ पर माइनस क्यों होगा, बिकॉज वी हैव नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव चार्जेस. सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को बढ़ाएगा. ओके, नाउ बट आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर इफेक्टिव, यहाँ पर इफेक्टिवनेस किस तरह से पता लगेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. जो ज्यादा पास में होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. मींस हियर यू कैन से नेगेटिव चार्जेस आर मोर क्लोजर टू द कंडक्टर फर्स्ट. It means this reduce in the potential will be more effective. मतलब यहाँ पर जो चार्ज का जो पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर इस फर्स्ट कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस. ऑल्दो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा बट ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा, दैट रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ अब यहीं पर इसी केस में अगर मैं क्या करूं कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसको अगर अर्थ कर दिया जाए, मींस इफ आई कनेक्ट अ कंडक्टर हियर एंड आई जॉइन इट टू द अर्थ, मतलब यहां पर क्या किया हमने, इसकी अर्थिंग की. एंड व्हाट इज द अर्थिंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द अर्थिंग. अब यहां पर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, दिस ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ. अब यहां पर इससे पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा था. अब क्या हो गया यहाँ पर कि जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो सब क्या हो गए, यहाँ पर अर्थ हो गए. मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट था, जो पोटेंशियल बढ़ रहा था वो भी क्या हो गया, कम हो गया. इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे, जो पोटेंशियल कम हुआ, उस कम पोटेंशियल की वजह से हम यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज और दे सकते हैं.
पहले क्या था, हमने इसको चार्ज कहां तक किया था, अप टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन उस चार्ज कंडक्टर की वजह से, इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से वहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। जब पोटेंशियल कम हुआ तो हम वहां पर इसको और चार्ज दे सकते हैं। अब क्या हुआ, इन द थर्ड केस वी हैव कनेक्टेड एन अर्थ वायर टू दी सेकंड कंडक्टर, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस है, ऑल द चार्जेस आर मूव टू द अर्थ। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब इस कंडक्टर को हम क्या है, और चार्ज यहां पर दे सकते हैं। ओके, तो अब इसका मतलब यहां पर कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? सो द कंक्लूजन इज दैट वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थड कंडक्टर। मतलब पहले से हम क्या करें, एक कंडक्टर का दूसरी साइड को अर्थ कर दें और वो अनचार्ज है। जब उस अनचार्ज अर्थड कंडक्टर को हम एक चार्ज कंडक्टर के पास लेकर आएंगे, तब उस सिस्टम का जो और चार्जेस है वो बढ़ाया जा सकता है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थड कंडक्टर नियर टू इट. So this is all about the working of the capacitor. This is the basics or the introduction of the capacitor and capacitor.